शारीरिक तौर पर कुदरत ने इस तरह से उसकी संरचना की कि वो एक पूरी तरह से संपूर्ण महिला नहीं है, सिर्फ एक ही पहलू से कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बाकी इसमें हम महिलाओं के उसका शोषण होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है अभी कि पूरी तरह से इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, वो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो या वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेज, एंड द वेरी सेंसिटिव स्टेज इज दैट स्कूल, where from we actually get the impression that what is our duty as an individual. I think that very tender age of your preschool, I think if a couple is having two daughters, they're the blessed parents, and they wish to have two daughters, and there is no such discrimination between a boy child, a male child or a female child. बहुत एक कारण मुझे लगता है, आप भी इससे अग्री करेंगे, हम रिपोर्टिंग नहीं करते इनजस्टिस की, राइट? तो अगर आज हम देखते हैं इस सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने लाके रख दिए, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि केसेस की रिपोर्टिंग होनी शुरू हो गई। Hello everyone, welcome to another podcast in pursuance to 4th Professor V.S. Mallar Memorial Legal Aid Competition 2025-26, and the theme for the competition is violence against women and trans women. Good afternoon, ma'am. So today we are honored to have Dr. Shashi Prabha ma'am from the University of Jammu, whose academic work and social insights will bring depth to our discussion on violence against women and trans women. She is also coordinator of Social Justice Club. She will help us discuss the issue of violence against women and trans women and explain how education, awareness and social attitudes play an important role in preventing such violences. Ma'am, thank you so much for being here with us today. Thank you so much. Thank you so much for connecting me, be here with us to discuss on such an important theme which invites the attention of each and every section of the society. Thank you. So let's begin with the podcast. So we often talk about equality as a principle in our laws and discussions, but its true impact is seen in daily life. The way people are treated at home, in public spaces, and at workspaces can be very different based on their gender identity. Right. So, many people discuss equality, but in practical life, how do women and trans women experience a difference due to gender identity? Well, I would like to begin from the very basic 17 Sustainable Development Goals that globally we are talking about ensuring equality, not restricted to one community or one nation. We are globally discussing something like there should be social equality. Now, dear student, when you are touching with such a sensitive issue, जिसमें कि हम समानता की बात करते हैं, और अगर हम देश में या फिर विदेश में या पूरी दुनिया में एक स्टेबल सोसाइटी की बात करें और एक ऐसे मानव समाज के विकास की बात करें, उसमें वो विकास तब तक हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे जब तक हम समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। जैसे कि अब आपने बात की वुमेन की इक्वालिटी की और फिर ट्रांस वुमेन की इक्वालिटी की। देखिए, सबसे पहले जब हम कभी इस तरह के विषयों के साथ जुड़ते हैं, एक बात को तो आप आज की जनरेशन के बच्चे हैं, आपने भी इन चीजों को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं ना कहीं वो समानताएं हमारे सामने नहीं है। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट वेयर द डिस्कशन स्टार्ट्स. It starts at the very point of time when we actually acknowledge there is not something which has been equally distributed among the different sections of the society. So to me, having such a discussion through such young, vibrant youth of the society, that you have actually realized that there is something which is not being properly distributed or properly addressed. And that too, our theme, our topic when we are talking about equality amongst women, and that too not only restricted up to the women, you are taking it further, targeting the trans women, you know. तो जब हम महिलाओं की इक्वालिटी की बात करते हैं, दोबारा मैं ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितना हमने बात की एक वुमेन जो एक जेंडर इक्वालिटी की बात की,
और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की बातें आती हैं, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। हमने तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो सालों से डिस्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है और वो इग्नोर्ड है, उसके बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। मेरा अपना ये मानना है कि जब हम इस बात को समझ पाए कि हमें सिर्फ पुरुष और महिला की इक्वालिटी की बात को ना करके एक और भी समुदाय है जिसके बारे में सोचने पर पहल करना बहुत लाजमी है। तो आज आप अगर इस पहलू के साथ जुड़े हैं, इस विषय के साथ जुड़े हैं कि हम महिलाओं की समानता के साथ ये एक अंतर को समझने का प्रयास करें जहां सिर्फ एक महिला ना हो लेकिन एक ऐसी महिला जो कि शारीरिक तौर पर कुदरत ने इस तरह से उसकी संरचना की कि वो एक पूरी तरह से संपूर्ण महिला नहीं है, सिर्फ एक ही पहलू से कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बाकी ईश्वर ने जो सेंसेस हमें दी हैं, जो समझने की शक्ति हमें दी है, जितनी भी मतलब जिज्ञासा हम सब में है उनमें भी वही है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि वो किस तरह से प्रताड़ित होती हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट होती हैं, इस विषय के साथ जुड़ना मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी है। और आप जैसा यूथ, आप जैसे जनरेशन जब इस तरह के विषयों के साथ जुड़ती है, वही एक शुरुआत होती है कि हम समानता को या इक्वालिटी को समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, हमारे व्यूवर्स को इससे बहुत समझ आएगी। थैंक यू सो मच। This was a very good way of spreading awareness. So, while violence against women is widely discussed, the experiences of trans women are often overlooked. Right. It's important to understand the specific challenges and risks they face in both public and private spaces. So, my question is, what sort of violence and harassment might trans women experience in public and private setting? Right. I hope you agree with the fact that there is always harassment which is physical and emotional as well. तो महिलाएं तो प्रताड़ित होती आई हैं, शारीरिक रूप से भी होती हैं और मानसिक तौर से तो होती हैं। और शायद वही एक कारण है कि जहां इतने सालों से हमने अपने समाज को किस तरह से डिफाइन किया है, इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। यू नो, द वेरी प्री कंसीव्ड नोशन दैट वी हैव इन आवर माइंड दैट वट एवर द पावर इज असाइन्ड इन द फैमिली, इट गोज टू द मेल मेंबर। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, but over the time the very concept of authority which is always headed by the male member in the family, मुझे लगता है पिछले 2-3 दशकों से या पिछले काफी देर से, बहुत देर से हमने बार बार इन विषयों के साथ जुड़ना चाहा और धीरे धीरे हमारे घरों में हमारे जो अपने फैमिली मेंबर हैं उसमें हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, हमारे हस्बैंड्स के रोल में, हमारे फादर के रोल में, हमारे ब्रदर्स के रोल में, या जिस किसी भी रिश्ते के साथ हम अपनी फैमिली में अपने मेल मेंबर्स के साथ जुड़े हैं उनमें भी बहुत बदलाव आया। आज उनकी तरफ से जो सपोर्ट मुझे अपने परिवार से है, आप बच्चे आज या फिर पूरा आपका जो ग्रुप इस पूरी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, जब तक आपकी फैमिली का हर सदस्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा आप यहाँ तक नहीं आ सकते। तो वो एक जो पेट्रियार्कल सेटअप था वो धीरे धीरे कहीं कम हो रहा है और जितना एम्पावर्ड फीमेल हो रही हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी उम्र की जो महिलाएं हैं, वो सब जगह विजिबल है। लेकिन उसके साथ साथ एक और पहलू जो बहुत जरूरी है जिसमें कि हम महिलाओं के उसका शोषण होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है अभी कि पूरी तरह से इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, वो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो या वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन ये अभी भी प्रवेल कर रहा है, ऐसे केसेस हमारे सामने रिकॉर्ड होते हैं। ये तो महिलाओं के साथ हो रहा है। और लेकिन जिस टॉपिक के साथ आप इस डिस्कशन के साथ आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे हम एक और ग्रुप को बात कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांस वुमेन। तो आज के दौर में जब 2025 की हम बात करते हैं, आज आप अखबार उठा के देख लीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, आज के टाइम पे हम जितना भी बात कर लें कि इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, कोई ना कोई खबर आपको किसी ना किसी न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिल जाएगी कि कैसे एक वुमेन जो कि ट्रांस वुमेन नहीं है
उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। व्हाट टू टॉक अबाउट अ ट्रांस वुमेन जो कि ऑलरेडी समाज में एक स्टिग्मा है, उसके साथ किस तरह की वायलेंस होती होगी, इसको इमेजिन करके मुझे लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बियर करता होगा या देखता होगा। तो ये तो कहीं इस बात में दो राय नहीं कि महिलाओं के साथ तो एक्सप्लॉयटेशन होती ही है, उसके साथ साथ जो ट्रांस वुमेन है, क्योंकि हमारी मानसिकता या हमारी सोच ही ऐसी है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं एड्रेस करके कि हम उनको किस तरह से बुलाते हैं या हमारा अपना बिहेवियर उन महिलाओं की तरफ कैसा होता है। आप इस चीज को सोचें और कभी शायद ऐसा एहसास कर पाए हम लोग कि ये कितना पीड़ा देता है, कितना दुख देता है कि जब हम अपने साथ की, जिसमें कि उनका अपना कोई कसूर नहीं, वो तो कुदरत की संरचना है, नेचर ने उन्हें इस तरह से बनाया, लेकिन हमारी मानसिकता या हमने अपने समझने में, अपने व्यवहार में कुछ ऐसे शब्दों को चुन लिया कि जब किसी को डिग्रेड करना है या जब किसी को एक नेगेटिव तरीके से बोलना है तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये सब चीजें हैं जो हम करते हैं लेकिन जो नहीं होनी चाहिए। I totally agree. So, along with understanding the challenges they face, it's also important to know what protections the law provides. Yeah. Women and trans women, like every citizen, has basic rights guaranteed under the Indian legal system. True. So, what are the basic human rights enjoyed by women and trans women in Indian legal system, just like any other person in the society? या बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि जब भारत के हर एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। आप तो कानून की शिक्षा या उस डिपार्टमेंट के साथ हो, मुझसे ज्यादा पता होगा कि लीगल जो एक प्रोटेक्शन है, डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए अलग अलग अधिकार या अलग अलग उनके राइट को रखा गया है। जब हम एक इंडिविजुअल की राइट की बात करते हैं, हम कहते हैं राइट ऑफ एजुकेशन, we say right of expression, we say right of freedom, we say right to have the good quality of healthcare services, right to have equality at the workplace. So these are the basic things which are entitled for each and everyone as a part of the society. Because the honorable this court or the honorable system of the entire judiciary, it has given us those laws, regulations to have a workable place, and I think it is equally important, and it should go for all the trans women who are actually empowered in today's time. आई होप आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे। आज जब हम डिजिटल मीडिया की एक रेवोल्यूशन के साथ जा रहे हैं, ये पॉडकास्ट क्या है, एक मीडियम है, हम पब्लिक तक अपनी बात को लेके जाए। तो एक ऐसा दौर था जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रीच इतना बड़ा नहीं था। आज हम सबके पास अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सब लोग फेसबुक पे हैं या बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं जहां हम अपने से हटकर दूसरों तक अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट हाउ लक्ष्मी इज ब्रिंगिंग दैट लैंडमार्क चेंज एंड example for the people in the society, that how she has contributed to help all those trans women in the society. And I think the way she comes on the public platform, the confidence that we see in that personality, that is amazing. कितने स्ट्रगल के बाद आज उनकी एनजीओज हैं और इतनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांस वुमेन के साथ जुड़कर अपने काम को और उस तरह की अवेयरनेस हमारे सामने लेके जा रही है। कारण सिर्फ ये है कि इस बात को रियलाइज किया गया कि जो महिलाओं को चीजें मिलती हैं, अब आप उसमें हेल्थ केयर की बात करें, आप उसमें जॉब सिक्योरिटी या वर्क प्लेस पे किस तरह का माहौल होना चाहिए उसकी बात करें, या और जितनी भी फैसिलिटीज है, जितनी भी जो हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट की बात करते हैं जो एक आम महिला को मिलनी चाहिए, वो ट्रांस वुमेन के लिए भी होनी चाहिए। अभी तक नहीं है पर इसके ऊपर बार बार बात हो रही है। So, discrimination is not always obvious. It often appears in subtle ways at workspaces, schools, or even hospitals. Understanding these everyday challenges is crucial to seeing how they affect the dignity and well-being of a woman or a trans woman. So, in what ways does the everyday experiences of discrimination
impact the dignity and mental health of a woman or a trans woman? Okay, right in the question that you are, we are about to discuss, you talked about school. You talked about the public places. I think when we are talking about any change that we all visualize to have in our society, it actually starts from a very, very sensitive stage. And the very sensitive stage is that school, where from we actually get the impression that what is our duty as an individual. I think that very tender age of your preschool, and I hope you all will agree, जो प्री स्कूल या 5th में या 4th में जो टीचर्स ने कहा था वो अब कभी हम भूलते नहीं हैं. तो वो जो स्टेज हमारी एज का रहता है वो हमारा एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि हम किस पर्सनालिटी के साथ अपने आप को ग्रूम करेंगे. तो आज अगर हम वुमेन और ट्रांस वुमेन की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा टाइम था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और ये तो बहुत पुरानी बात है, 80s की बात है, अर्ली 90s की बात है, तब हमेशा से एक प्रेफरेंस दिया जाता था मेल चाइल्ड को. आज आपने देखा होगा कि वो प्रेफरेंस धीरे 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 समाज में कम होता जा रहा है. And I think if a couple is having 2 daughters, they are the blessed parents. And they wish to have 2 daughters. And there is no such, discrimination between a boy, boy child, a male child or a female child. And I think we have the equal celebration if the family is blessed by the birth of a girl child in the family. So that is actually the change, which is evident and visible at this point of time. और वो कैसे हुआ? क्योंकि वो डिस्कशन से हमने धीरे 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 बच्चों तक के बाद, समाज तक ये बात की कि बेटी और बेटे के बीच में कोई अंतर नहीं है. तो आज की इस जंक्शन पे, इस क्रॉस रोड पे, जहां हम सब मिलकर एक ऐसे टॉपिक के साथ इन्वॉल्व हैं जहां पे हम महिला और एक ट्रांस वुमेन के साथ के बारे में बात कर रहे हैं. तो ट्रांस वुमेन जैसे जो, या थर्ड जेंडर जिसको हम कहेंगे, इसका कलेक्टिव डिस्कशन, इस पूरे ग्रुप का डिस्कशन हैज टू बिगिन फ्रॉम दी स्कूल. So we sensitize our student right from the school, and I hope your would be the age group जहां आपने ग्रीन दिवाली के स्लोगन के साथ स्टार्ट किया, to sensitize ourselves to contribute towards this environment. Yes. What was the initiative? Your teacher gave you those projects and those assignments, that how to celebrate Green Diwali. And I think at this point of time, whenever Diwali comes, that is there in your mind, okay, let me, let us burn less crackers. Yes. What is my contribution to make my environment clean? So that is actually the soft gender reminders that we are getting. And once we will engage that tender minds right from the school, right from that very age group, that there is no such difference between a male, female or a transgender. So that is the beginning from where we can have that possible change in the society. Yes, ma'am. So many transgender women and women are reluctant to report crime. What are the fears that prevent them from finding assistance from the police or the justice system? Okay, I hope बहुत एक कारण मुझे लगता है, आप भी इससे अग्री करेंगे, हम रिपोर्टिंग नहीं करते इनजस्टिस की. Yes. राइट? तो अगर आज हम देखते हैं इस सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने लाके रख दिए, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि केसेस की रिपोर्टिंग होनी शुरू होगी. वी आर ओपन टू डिस्कस सच काइंड ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स. तो और हम इससे पहले ओपन क्यों नहीं थे? इट्स अ वन क्वेश्चन. अब ओपन अगर हो गए हैं तो हमें आगे इसको कैसे लेके जाना है? आई थिंक द डिस्कशन इन विच वी आर engaged today, the podcast that we are having today, it is just one example that we are open to discuss something which is pertaining to such a sensitive issue. Yes. I being a part of this entire academic system, having discussions at Doordarshan or radio or other places, part of my community service and social justice club, and then engaged in all such kind of issues which are pertaining to the social causes or the societal causes. We never talked about trans women that frequently. Yeah. And I honestly speaking, I never spoke about trans women before. We talked about third gender collectively, Yeah. where we have male and female both. But we didn't talk about trans women. So that is actually a change which is visible. तो प्रॉब्लम आपने कहा कि जो इनजस्टिस उनके सामने होता है,
पहले हम अपने आप को ये समझ तो पाए कि हमने अपने उस इनजस्टिस को रिपोर्ट करना है। हाँ। उसके लिए अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को लाना है कि कभी अगर इस तरह की कोई ट्रांस वुमेन अपने साथ एक्सप्लॉयटेशन को समझती है तो उसको आगे आना है। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत लीगल सपोर्ट है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले आपसे एग्जाम्पल दिया, क्यों हमारी मानसिकता बदल गई कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ठीक है ना, ओवर नाइट या डिस्कशन 2 या 3 साल करने से कभी उसमें बदलाव नहीं आता। जब हम एक बहुत बड़े चेंज को विजुलाइज करते हैं, वो चीज छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से आगे चलता है। राइट, वी हैव दिस डिस्कशन टुडे, इट शुड नॉट स्टॉप हियर, it should continue as long we would like to have that change that we actually would like to see in the society। तो सबसे बड़ा जो एक इनिशिएटिव वो होना चाहिए, वो मैसेज हम सब तक जाए। मुझे भी एक महिला होने के नाते सेंसिटाइज रखना है अपने आप को, किसके प्रति? एक ट्रांस वुमेन के प्रति। है ना, अनलेस आई विल कंसिडर दिस सेंसिटिव इशू with so much of respect and sensitivity, how can I expect that somebody else would be that respectful to that community which belongs to me as a woman? But biologically, nature has created, or having it's a different kind of formation, and the only difference is that she cannot give birth to a child. That is the only difference. Otherwise, she's that group of the population, they are equally intelligent, they are efficient, they can contribute immensely. So that is how we are part of the society। जो महिलाएं हैं, आप बच्चियां हो, मैं हूं, सबसे पहले तो ये लीड हमको लेना है ना। हम अपने पुरुष साथियों से एक्सपेक्ट करें या किसी और से एक्सपेक्ट करें, वो और बात है। सबसे पहले आप, मैं, वो सारी महिलाएं अपनी ट्रांस वुमेन साथियों के लिए, उस ग्रुप के लिए अपने आप को क्या करें, सेंसिटाइज करें, उस माइंडसेट के साथ चलें कि नहीं, दे बिलोंग्स टू अस एंड वी नीड टू स्टैंड एंड स्पीक फॉर देम। Yes, ma'am. Society and laws play a big role. The family remains the first and most immediate environment in a person's life. The kind of support or challenges a woman or a trans woman experiences at home can deeply impact their safety, their dignity, and their well-being. Families also have a large influence on an individual's life. What challenges do women and trans women face within their families, and how may family support improve their lives? Okay, very important question. I hope आज जब इस डिस्कशन के साथ आप जुड़े हैं, what's your good name? वंशिका, I hope आप इसे रिलेट कर पाओगे। If you are a confident girl today, why it is so? Because you have been supported by your parents, right? तो फैमिली का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं, सिक्योर मानते हैं, स्टेबल मानते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ का है? फैमिली का। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो फैमिली होती है वो हमारा पहला स्कूल होता है, एक लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है। अपने परिवार में अपने फैमिली मेंबर से जैसे जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है, हम ग्रेजुअली उसी तरह के इंडिविजुअल्स की तरह इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। तो अगर फैमिली के बीच में ही इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि हमारे घर में एक ट्रांसजेंडर ने बर्थ लिया है, तो उसमें फैमिली क्या समझती है, ये तो हमारे लिए इट्स अ स्टिग्मा, मतलब दे हैव डन सम ऑफेंस and they will be punished by the people because there is a birth of a trans gender in the family। तो वो एक जो स्टिग्मा है, वो जो एक मानसिकता है, जब तक हम उसको बदलाव नहीं करेंगे और एक ऐसा मैसेज इस तरह की डिस्कशन के साथ उन फैमिलीज या उन पेरेंट्स तक नहीं जाएगा जिनके यहाँ की इस तरह के ट्रांसजेंडर बच्चों का बर्थ होता है। मुझे लगता है कि जब ये बदलाव कितना अच्छा होगा, जब एक बेटे के जन्म पे भी हम उतने खुश हैं, एक बेटी के जन्म पे भी हम कितने खुश हैं, और वैसे ही अगर किसी के घर में एक ट्रांसजेंडर हो जाए तो उस पे भी हम इतना ही सेलिब्रेट करें, या कोई हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं आए। एंड व्हाई वी आर थिंकिंग दैट दिस इज नॉट गुड, it has not been conveyed to us by any divine energy. We have formulated something like that, and that is why we are saying no for the birth of a transgender in the family.
we design all these kind of stigma or such impressions or such understanding that this is respectful and this is not respectful. What would I say to my relative, to my family friend, if there is a birth of a transgender in the family? Let us first have that feeling, have that understanding amongst us. हम इसके साथ जुड़े कि अगर इस तरह से कोई ट्रांसजेंडर बच्चे का फैमिली में बर्थ होता है तो उसको वैसा नहीं समझना है जो अभी तक हम समझते हैं. आपको जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों को अपने फैमिली को, पेरेंट्स को अपने आप में लगता है कि हम लोगों से क्या कहेंगे, हमारे घर में किसका बर्थ हुआ. मतलब इट्स नॉट दैट रिस्पेक्टफुल, नॉट दैट वेलकमिंग. पर उस पर जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक उन तक ये अवेयरनेस नहीं जाएगी. अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा, वी वेलकम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली, isn't it? We have explored the challenges, discrimination, and everyday struggles faced by women and trans women, as well as their basic rights. Building on this, it's important to understand the specific legal protections available to a trans woman against abuse, harassment, and discrimination. There are laws now that recognize the rights of transgender person. So, what are the rights that a trans woman is entitled to against abuse, harassment, and discrimination? राइट. जैसे कि पहली वाली भी डिस्कशन के साथ हमने कनेक्ट होने की कोशिश की, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स विच आर एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द freedom, space, and all such provisions which all are given to the individual citizens of the country. Now, talking about the special legal support which has been extended to this section of the society, I hope you have heard about reservation in the sector of education. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 1% रिजर्वेशन इन इस कैटेगरी में, या ट्रांस वुमेन जो है या ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में जो भी लोग थे, आपने, आई वुड लाइक टू मेंशन वन एग्जांपल. आई होप आज से 5-7 साल पहले जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता था तो हम उसमें 2 ही कॉलम देखते थे, मेल एंड फीमेल. ठीक है ना, थर्ड वाला तो होता नहीं था. डिड यू नोटिस समथिंग दैट पिछले 5 या 7 सालों में जो भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसमें एक और ब्लॉक आता है, दैट इज मेल, फीमेल एंड अदर्स. सो दैट मीन्स दिस इज द ग्रेजुअल चेंज. जिस चेंज की मैंने पहले आपसे बात की कि अगर हम कुछ चेंज देखना चाहते हैं वो ओवरनाइट नहीं आता, उस पर डिस्कशन होता है, उसकी सेंसिटिविटी को समझा जाता है, फिर वो धीरे धीरे परकोलेट होकर हमारे व्यवहार का या हमारे कामकाज का हिस्सा बनता है. तो आप कभी भी कोई फॉर्म अभी आप देखते हैं, देयर इज जेंडर की बात होती है, वहां पे 2 कॉलम के साथ एक तीसरा कॉलम भी होगा. तो मतलब एक रिकॉग्निशन इस ग्रुप को हमने बहुत रिस्पेक्टफुली दे दी, राइट. तो ये एक शुरुआत होगी. और दूसरा कि क्या ऐसा हेल्प है, एक रिजर्वेशन की हम बात करते हैं. सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जम्मू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगी, हमारे यहाँ जब एडमिशन होता है आपको पता होगा डिफरेंट कैटेगरीज के साथ पिछली जो काउंसिल हुई जम्मू यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल, उसमें इस बात को अप्रूवल दिया गया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी हर कोर्स में एक सीट को allocate किया जाएगा. It's a remarkable decision and remarkable support coming to this very section of the society from a very, very prestigious institute, that is University of Jammu. So here that positive, that a very hopeful beginning has been started. दूसरा, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, अब देखिए जब आप फीमेल हेल्थ की बात करते हैं, यू हैव एक्सेस टू द डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स. अब जब हम अपनी इस कैटेगरी की ट्रांस वुमेन की हेल्थ की बात करते हैं, वहां थोड़ा सा अभी उतना एक्सेस नहीं है. जब हम हेल्थ की बात करें तो अभी हमें दोबारा उस और सोचना है कि इट शुड बी अ इजी एक्सेस टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज for the trans women as well. So I think there is so much that we have been focusing, but still there is a long way to go, so that these trans women who are the part of us, I consider that they're part of the same section, उनको भी वही privileges या वही sense of security मिलना चाहिए जो हमें as women society में मिले.